Hello everyone, I hope you all are good. In the previous lecture, we have just finished the regression chapter, and in today's lecture, we are going to start with a new topic, that is mathematics of finance. It is one of the most important topic as per your exam point of view. बेटर होगा कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड प्रैक्टिस करते रहें. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. जस्ट गो एंड वॉच इट. सो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिकली मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में से आपके एग्जाम में से 100% क्वेश्चन आता ही आता है. आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फाइनेंस के मीनिंग से. नाउ व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी. बेसिकली हम बात करते हैं कि ये मनी मैनेजमेंट है विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज जैसे कि इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग. फाइनेंसिंग हमने कॉमर्स के सब्जेक्ट में बहुत पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. +1 से फाइनेंसिंग का टॉपिक शुरू हो जाता है. तो फाइनेंसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम अ कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी. एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ कैपिटल? As we all know, capital is the stock of accumulated wealth, money or its equivalent. Then consideration. What is the consideration? If suppose आपने किसी को कुछ lending के लिए दिया है या आपने किसी से कुछ borrow किया है तो there is a fees that will be charged. तो वो होती है consideration. Without consideration तो आप business नहीं करोगे. Then interest. So interest is basically consideration for the use of invested or loan capital. Principal क्या होता है? The capital originally invested. जो आप originally invest करोगे 20,000, 10,000, जितनी भी आपके पास capital है वो होता है आपका principal जिस पे आपको interest मिलेगा. Then time is the number of years or fraction of a year for which the principal is borrowed or loaned. Okay, next amount क्या होता है? As we all know, amount is the sum of principal and the interest. Then rate of interest की अगर हम बात करें then rate of interest is the amount charged for the use of the principal for a given length of time. अब यहाँ पे बात ये आती है कि there is interest and there is rate of interest. तो what is the basic difference in both of them? तो basically interest आपका जो होता है वो कंसिडरेशन होती है लाइक जो प्रॉपर अमाउंट होगा. और अगर मैं बात करती हूँ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट की देन इट विल बी लाइक 5% per annum, 10% per annum. It will be given in percentage, expressed in percentage. Okay, now there are two kinds of interest. First is simple interest and the another one is compound interest. Both are very important. In case of simple interest, principal remains unchanged throughout the term of the loan. Principal will be same. Then in case of compound interest, principal grows periodically at the end of each period. Then in case of simple interest is computed on the same principal because the principal will not change throughout the term of the loan. So interest भी हम उसी पे ही charge करेंगे जो हमारा same principal होगा. But in case of compound interest, as the principal grows periodically, so interest is computed on increased principal. Okay, तो ये तो थे कुछ थियरी की टर्म्स जो आपके लिए समझनी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी. आगे चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस की तरफ. तो सिंपल इंटरेस्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारा एक्सरसाइज 6.1. एक्सरसाइज 6.1 का पेज नंबर 174 ऑफ योर BMS बुक JK Thakral. सो पेज नंबर 174, exercise 6.1. First question is find the simple interest and the amount of principal of rupees 600 for 2 years at 5%. Question is very easy. Simple interest के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, that is I equals to P into R into T and S is the amount. So amount is the
sum of principal and interest. Now principal here is given as 600, time is 2 years, and rate of interest is as 5%. Simply put the value of three of them and you will get the answer as 16. Then in case of amount equals to principal plus interest. You just need to add the principal amount, that is 600, with the interest amount which you have just calculated as 616. Then next question is question number 5th, same page number 174, exercise 6.1. Question number 5th is, a savings account opened 3 months ago now has a balance of 2040. एक सेविंग्स अकाउंट में जो आपने 3 मंथ्स पहले खोला था, आज उसमें बैलेंस 2040 है, तो ऑब्वियसली आपने जब उसमें बैलेंस डिपॉजिट किया होगा, जो भी आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया होगा वो 2040 से तो लेस होगा. इफ द बैंक पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, इफ द बैंक पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड. आपको निकालना है इस केस में प्रिंसिपल. नाउ द अमाउंट विच इज गिवन टू यू एज 2040 इज द अमाउंट. ओके, नाउ here time is given as 3 months, but we need to calculate it in years, so we will divide it by 12, 0.25. then amount is given as 2040 and interest is 0.08. now let money deposited be rupees p. सिंपली हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे. अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अगर देखा जाए तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर दिया है. इस केस में अगर मैं प्रिंसिपल को कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास एक न्यू सम का फॉर्मूला यहीं से आ चुका है, दैट इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस RT. यहाँ पे सिंपली जस्ट वैल्यू आपने पुट करनी है. वैल्यू पुट करने के बाद यू विल इजीली गेट योर आंसर एज 2000. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. नो, क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3000 टू अमाउंट टू 3300 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3000, कितना टाइम लगेगा कि 3000 का अमाउंट जो है, 3000 का जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो चेंज होकर 3300 बन जाए 4% के सिंपल इंटरेस्ट पर. तो इस केस में मुझे निकालना है कि कितना टाइम चाहिए होगा इस अमाउंट को चेंज होने के लिए, इंक्रीज होने के लिए. तो उस केस में टाइम मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल इज गिवन एज 3000, अमाउंट इज गिवन एज 3300, रेट इज गिवन एज 0.04. सिंपली आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू यहाँ से सिंपली आ जाएगी, दैट इज 2.5 ईयर्स. कॉन्सेप्ट समझने में और कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है कि इट डिपेंड्स कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कैसी है, आप कितना एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर लेते हो. इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन डिस्कस नहीं कर रही हूँ. कॉन्सेप्ट समझाना ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो कैलकुलेशन तो आप इजीली अपने आप भी कर सकते हैं. बाकी मैं आप लोगों को PDF तो गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दूंगी. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मुझे सिंपली लैंग्वेज में समझना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द जस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. याद करिए, अभी अभी मैंने जब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस करवाया था, उस टाइम पे मैंने आपको कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ग्रोस पीरियोडिकली. ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम पे जो हमारा इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड होकर आता है, हम दोबारा उसी पे इंटरेस्ट लगाते हैं. तो इसीलिए इसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारा प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है पीरियोडिकली. नाउ यहाँ पर देखा जाए तो इंटरेस्ट में भी कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल. यहाँ पे इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कैसे, कौन कौन से केसेस होते हैं? एनुअली और ईयरली, सेमी एनुअली लाइक 1 ईयर में 2 बारी, क्वार्टरली क्वार्टर वाइज होता है ये, देन मंथली, मंथली हमें पता है, देन एट एनी अदर रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम. कोई भी आपको रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम दे दिया,
तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इंटरेस्ट को कन्वर्ट करते रहोगे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. देन here are some important terms, that is first one is frequency of conversion. Now what is frequency of conversion? A number indicating how many times interest is compounded in 1 year. that means मुझे एक ईयर में कितनी बार अपने इंटरेस्ट को कंपाउंड करना है. मुझे क्वार्टरली करना है कंपाउंड, या फिर मुझे सेमी एनुअली करना है, या फिर मंथली करना है, एनुअली करना है, कितनी बारी मुझे करना है उसको कन्वर्ट, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन समझ लिया है तो यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड भी समझ लेते हैं. कन्वर्जन पीरियड इज व्हाट? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कन्वर्जन्स ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कन्वर्जन पीरियड समझाना हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लाइक इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन इज 4. अभी हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन के केस में क्या पढ़ा था? द नंबर इंडिकेटिंग, राइट, द नंबर इंडिकेटिंग. उस केस में यहां पर मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन 4 है क्योंकि नंबर इंडिकेट कर रहा है कि क्वार्टरली के अकॉर्डिंग तो 4 है, बट कन्वर्जन पीरियड देखा जाए तो 4 में अगर मैं पूरे ईयर को डिवाइड कर दूं तो एक एक स्लॉट में 3 मंथ्स आएंगे. तो उस केस में मेरा जो कन्वर्जन पीरियड होगा वो 3 मंथ्स होगा इन केस ऑफ क्वार्टर. ओके. देन व्हाट इज द कंपाउंड अमाउंट? The total amount due at the end of the last period. The total amount, वो अमाउंट जो मुझे लास्ट पीरियड के बिल्कुल एंड में मेरे पास ड्यू होता है, दैट इज द कंपाउंड अमाउंट. नाउ व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल. दैट इज अगर मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो उस केस में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, तो आंसर सिंपली आ जाएगा. अब यहाँ पर नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट जो है हमारा वो किस तरीके से बना है. देखिए इस केस में देखा जाए तो हमें P लेना है ओरिजिनल प्रिंसिपल, देन N इज द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, I इज द इंटरेस्ट रेट पर कन्वर्जन पीरियड. ये डेसिमल फॉर्म में आप लीजिए बेटर होगा. देन जो कंपाउंड अमाउंट है मेरा वो होता है अमाउंट एट द एंड ऑफ n पीरियड्स. इट डिपेंड्स कि आपको कितनी बारी कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे n पीरियड इसको लेट किया हुआ है. अब देखा जाए तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, ये मेरा नॉर्मल प्रिंसिपल है जो मैंने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किया होगा, और ये यहाँ पे इंटरेस्ट जो उस पर लगा है. सपोज अगर 100 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किए हैं और उस पर 10% इंटरेस्ट लगा है, तो 10 जो मेरा हो गया यहाँ पे वो इंटरेस्ट हो गया. ओके, 10% ऑफ 100. देन यहाँ पर जो मेरे पास अमाउंट आएगा दैट विल बी 110. नेक्स्ट केस में अगर सेकंड कन्वर्जन पीरियड है तो मैं 100 दोबारा से 100 पे इंटरेस्ट ना लग के अब इंटरेस्ट लगेगा 110 पे, और 110 तो ऐड होगा ही, प्लस 110 पे फिर से इंटरेस्ट लग के ऐड होगा. सो इट विल बी P1 + I होल स्क्वायर. देन थर्ड पीरियड के कन्वर्जन में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा. तो इट डिपेंड्स कि आपने कितने पीरियड एक ईयर में देने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होता रहता है. तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलता है, दैट इज कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + I रेज टू द पावर n. ये n जो होता है ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि कितने हमारे पास, अगर एनुअली है तो उस केस में 1 हो जाएगा, अगर सेमी एनुअली है तो 2 हो जाएगा. तो इट डिपेंड्स. ओके. नाउ हियर इज द फॉर्मूला ऑफ I, दैट इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर. अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं एक तरीके से. तो देखा जाए तो वो 2 फॉर्मूले कौन से हैं? एक तो होता है सिंपल फॉर्मूला, एक होता है मेरे पास सिंपल फॉर्मूला जिसमें हमें नॉर्मली जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है. ये सिंपल फॉर्मूला उस केस में यूज हो सकता है जहाँ पे आपका एनुअली का केस आ रहा है. बट अगर ये केस एनुअली का ना होकर ये वो केस होगा जिसमें सेमी एनुअली की बात हो रही है या जिसमें क्वार्टरली की बात हो रही है, मतलब एक ईयर में मैं उसको और डिवाइड कर रही हूँ कन्वर्जन पीरियड्स के बेसिस पे, तो उस केस में ये क्या निकल सकता है? तो यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, दैट इज जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे हम उस कन्वर्जन पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, और जितना मेरा टाइम मुझे क्वेश्चन में गिवन होता है उतना हम उस कन्वर्जन पीरियड से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ. सो पेज नंबर 182 ऑफ योर बुक,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द compound amount and the compound interest of 4,000 invested for 7 years at 6% compounded annually. See here, यहाँ पे annually का केस है ये. हमें कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. 4,000 रुपीज अगर हम आपने डिपॉजिट किए हैं फॉर 7 years एट 6% कंपाउंडेड एनुअली, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इसे नॉर्मल गिवन फॉर्म में लिख लिया है. सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमारा सिंपल फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन पीरियड की बात नहीं की है. यहाँ पे 1 ईयर को हमने एनुअली बेसिस पे ही सॉल्व करना है. इस केस में यहाँ पर अब आपको जो चीज समझनी है वो है बेसिक कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i raised to the power n. ओके, तो इसके लिए आपको आपकी बुक के पीछे टेबल गिवन है. टेबल 1 इज amount at compound interest s equals to 1 + i raised to the power n. ये टेबल आपको तब यूज करनी है जब आपको कभी भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो कि एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका जो अमाउंट होगा वो क्या आएगा. तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम टेबल 1 को यूज करते हैं, अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, नाउ अब करना क्या है, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको रो वाइज तो नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन है, n गिवन है आपको, और कॉलम वाइज आपको रेट्स गिवन है. अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो क्वेश्चन में रेट आया है वो यहाँ पे कौन से स्लॉट में आ सकता है. सो इट्स 0.06. अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 0.06 सो हेयर इज, ध्यान से देखिए, हेयर इज 0.06. सो हेयर इज 0.06. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.06 है एंड एन यहाँ पे मुझे गिवन है. चेक करना ये है कि एन कितना था क्वेश्चन के अंदर. तो एन क्वेश्चन में था 7. तो यहाँ पे चेक करेंगे 0.06 के केस में 7 कहाँ पर आ रहा है. 7 इज दिस, दैट इज 1.50363026. तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली वहां पे पुट कर दूंगी. मैंने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दी है. आपको इस वैल्यू के अंदर 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो टेबल गिवन है उसमें ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व करके वैल्यू गिवन दी हुई है. सिंपली जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर. देन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल आपको कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करना पड़ेगा. देन सिंपली देन यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द अमाउंट इफ ₹1800 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 8 years. एक बार हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं. फाइंड द अमाउंट इफ 1800 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ध्यान रखिए सेमी एनुअली का केस है, दैट मीन्स इन्होंने 1 ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, 2 पीरियड्स में, फॉर 8 years. ऑल्सो डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो क्वेश्चन करते हैं यहाँ से हम. आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है एज 1800, एन इज गिवन एज 8 years एंड आई इज गिवन एज 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ओके, तो यहाँ पे अब हमारा कौन सा फॉर्मूला पुट होगा. यहाँ पे अब ये सिंपल फॉर्मूला पुट नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस हमारा कन्वर्जन पीरियड्स वाला आ चुका है. तो कन्वर्जन पीरियड के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि सेमी एनुअली का केस है. तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाते हुए भी बताया था कि जो भी हमारा कन्वर्जन पीरियड होगा उसको हमें डिवाइड करना है 2 से. ओके, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी कन्वर्जन की उसे हमें डिवाइड करना है 2 से. देन यहाँ पे जो भी n आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है. हमेशा रेट डिवाइड होता है और जो आपका टाइम होता है वो मल्टीप्लाई होता है. देन इस केस में भी क्या हुआ है, यहाँ पे आया है 1 + 0.025 raised to the power 16. सेम थिंग विद दिस, इसे भी हमें चेक करना है टेबल के केस में. तो यहाँ पे हम टेबल चेक करते हैं. सो टेबल 1 पे हम आते हैं और हमें फाइंड आउट करना है 0.025.
सो 0.025 हमारा इस केस में here is the 0.025 and 0.025 में मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है 16। तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 कहाँ पे आएगा, तो here is the 16 और यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ देन द वैल्यू इज 1.48450562। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल वैल्यू लिख दी है। आप चाहो तो वैल्यू में पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डेसिमल्स तक 4 प्लेसेस तक ही ले सकते हो एंड आप चाहो तो पूरी वैल्यू भी ले सकते हो। थोड़ा बहुत आंसर डिफर कर सकता है बट ज़्यादा नहीं करेगा, बाकी आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी मेरा अमाउंट आ गया 2672.10। देन कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस में सिंपल वैसे ही निकलेगा, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हियर इज द आंसर। नाउ देयर इज वन extra question, that is a man wants to invest rupees 5,000 for 4 years. He may invest the amount at 10% per annum compound interest accruing at the end of each quarter, or he may invest it at 10.5% per annum compound interest accruing at the end of each year. Which investment will give him better result? क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि आपने एक पर्सन है, सपोज उसने 5,000 अमाउंट इन्वेस्ट करना है 4 years के लिए एंड ही हैज़ 2 choices। या तो वो 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम में ईच क्वार्टर के बेसिस पे क्वार्टरली क्या कर दे, अमाउंट इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो एट द रेट ऑफ 10.5% कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ईच ईयर मतलब एनुअली तरीके से अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दे। अब यहाँ पे ये बताना है कि उसके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर होगी। तो सबसे पहले हम केस 1 लेके चलते हैं। तो केस 1 है जिसमें हमारा प्रिंसिपल 5,000 है, इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास 0.10 अपॉन 4 क्यों करा है, क्योंकि क्वार्टर का केस है। एन इस केस में मेरा 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेट को डिवाइड किया तो ऑब्वियसली एन को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दोनों पे इफेक्ट दिखाना पड़ता है, डबल इफेक्ट होता है ये। देन यहाँ पे अगर मुझे अमाउंट फाइंड आउट करना है तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन वाली वैल्यू भी लग जाएगी 1.4845 और यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है 7,422.5। केस 2 के केस में उसने एनुअली मनी लगानी थी इन्वेस्ट करके और इंटरेस्ट था उसका 10.5%। तो यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज़ लिख ली हैं सारी। यहाँ इस केस में एन चेंज नहीं होगा क्योंकि एनुअली का केस है, तो इसमें हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जस्ट मुझे देखना है कि यहाँ पे 0.10 कहाँ पर आ रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया है टेबल में किस तरीके से उसको चेक करना है। देन इस केस में सिंपली आप मल्टीप्लाई करो तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट अमाउंट वॉज 7,422.5 एंड द सेकेंड अमाउंट इज 7,454.5. So therefore second investment is preferable. Okay. Now there is one more question जिसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना है एंड द क्वेश्चन इज 8th question. What is the 8th question? See here. How long will it take for 5,000 to amount to 7,000 if it is invested at 8% compounded quarterly? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग, दैट मीन्स मुझे फाइंड आउट करना है एन। विल इट टेक फॉर 5,000, कितना टाइम लगेगा कि 5,000 7,000 में चेंज हो जाए एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्योंकि ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। इस केस में मैंने इसे 4 से डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन पीरियड। सो यहाँ पे आ गया है ये 0.02। एन तो मुझे फाइंड आउट करना है, बट मुझे एटलीस्ट इतना तो पता ही है कि एन जो भी होगा वो 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब 4t होगा यहाँ पे मेरा एन। ओके, तो इस केस में मैंने जस्ट सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ तक आ जाएगा, इतना आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको लॉग यूज करना है दोनों साइड पे। सो दिस विल बी लॉग 1.4 इक्वल्स टू, यहाँ पर जब मैं लॉग लगाऊंगी तो आपको पता है फॉर्मूला होता है लॉग का, उस केस में 4t नीचे आ जाएगा। ओके,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था पहले, तो अब बेस में आ जाएगा, देन लॉग ब्रैकेट 1.02। ओके, सो हमें लॉग 1.4 की वैल्यू निकालनी है। लॉग की वैल्यूज आप लोगों को निकालनी आती है, मैंने आपको क्लास में बताई थी। लॉग की वैल्यूज अगर आपको नहीं निकालनी आती है, देन आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको सिर्फ लॉग की वैल्यूज निकालनी बताऊंगी, या फिर मैं जो आज मैंने अभी टेबल समझाया है एक बार मैं उस वीडियो में भी ज़रूर आपको बता दूंगी। तो कोशिश रहेगी वो वीडियो जल्दी से जल्दी आए आपके लिए। सो लॉग की वैल्यू यहाँ पे 1.4 है, तो 1.4 यहाँ पे सिंपली वैल्यू आ गई है मेरी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लॉग की वैल्यू कैसे निकाली है इस क्वेश्चन के केस में। सो यहाँ पे आपके बुक के पीछे लॉग टेबल भी गिवन है T22 पे। सो लॉग टेबल ऐसी होती है, लॉग टेबल ऐसी होती है, यहाँ पे ऊपर कुछ नंबर्स होते हैं, कॉलम वाइज एंड रो वाइज भी कुछ नंबर्स होते हैं ना। मुझे फाइंड आउट करना है 1.4 की वैल्यू, तो 14 में 0 की वैल्यू मैं चेक करूंगी। 14 यहाँ पर है, उसमें 0 की वैल्यू, क्योंकि मुझे आगे कोई नंबर गिवन नहीं है, तो वैल्यू है 0.1461। 0.1461। यहाँ पर लॉग की वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक मेरा 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 था, 1 - 1 इज 0, और बाकी जो वैल्यू है विच इज़ द मैंटिसा, तो वो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ओके, फिर भी आपको नहीं समझ आया है, देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए लॉग की वीडियोस जल्दी से जल्दी लाऊं, ताकि आपको लॉग का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। क्योंकि BMS आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे लॉग की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाता है। सेम केस यहाँ पे मुझे लॉग 1.02 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि लॉग 1.02 है, तो मैं चेक करूँगी कि 10 में 2 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं 10, तो 10 इज़ हेयर, 10 में 2 की वैल्यू है 0086, तो 0086 इस केस में आ गया 0.0086। ओके, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4.25 ईयर्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा हो। कुछ न्यू लेकर आई हूँ मैं आज, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसका क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हो एग्जाम में, इसलिए आज हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड मंथली। ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मैंने सोचा एक समझाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स को अपने आप समझ नहीं आती हैं। तो आपको इसमें भी टाइम निकालना है, आपको ये बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल। ये कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा कि एक प्रिंसिपल डबल हो जाए। दैट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने आज कुछ ₹X डिपॉजिट किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको अमाउंट डबल मिले, तो उस केस में जैसा हमें क्वेश्चन बता रहा है हम वैसे ही लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल ₹X, अमाउंट लेट कर लेते हैं हम 2x। इस केस में हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है 12% कंपाउंडेड मंथली। टाइम तो हमने खुद फाइंड आउट करना है, तो इंटरेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट इज 0.12 कंपाउंडेड मंथली। तो यहाँ पे 0.12 कंपाउंडेड मंथली है इस केस में, तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, मैंने फॉर्मूला ये लगाया है, बट मैंने इसमें वैल्यूज़ लगाई हैं R/M और यहाँ पे M/T। सो अमाउंट के केस में यहाँ पे 2x, प्रिंसिपल यहाँ पे x है, 1 + 0.12/12, और यहाँ पे n तो मुझे पता नहीं है। अब इस केस में फाइंड आउट करने के लिए 2x/x = सिंपल मैंने यहाँ तक वैल्यू निकाली है, तो इतना मेरे पास आ चुका है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। आफ्टर दैट वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे मुझे 12 से इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इट विल बी 12n। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतना फिर से हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अटक जाएगा, हमें फिर से लॉग यूज़ करना पड़ेगा। लॉग हम वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करा है। इस केस में क्या करेंगे, log 2 देन 12n log 1.01। log 2 की वैल्यू होती है
3010, 12n log 1.01 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.0043। n इस केस में अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया है और एट द एंड मैंने 12 से भी इसे डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 70 मंथ्स आपका, अगर आपने 12 नहीं पुट करा होगा, और 5.84 ईयर्स। ओके, तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक फिनिश हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक फिनिश हो गया है, बट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। इंटरेस्ट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में अगर हम बात करें तो इफ अ प्रिंसिपल ऑफ P is invested for T years at an annual rate of R and interest is compounded M times a year, तो then interest rate per conversion period is R upon M and there are MT conversion periods, ये हमें पता है ऑलरेडी। So thus if we make use of formula 1, अगर हम formula 1 को यूज करें तो हमारे पास यही फॉर्मूला आता है सिंपल। Now we ask what happens to the amount as the number of times M that the interest is compounded per year gets larger and larger. That means मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया कि कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है। मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है, दैट इज योर इंटरेस्ट इज सो कंपाउंडेड दैट वी से एज दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो उस केस में हमारा जो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में जो फॉर्मूला आता है, तो दैट फॉर्मूला इज अमाउंट इक्वल्स टू पी ई। यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंशियल आती है, सो एक्सपोनेंशियल की पावर है यहाँ पे आर इंटू टी। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करना है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। okay, so if 2000 is deposited in a savings account that earns interest at an annual rate of 6%, 2000 अगर आपने डिपॉजिट किए हैं एक सेविंग्स अकाउंट में जिससे आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के केस में आपको कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का वर्ड मिलेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ लिख ली हैं जो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। एस मुझे फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि ये कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का केस है। ओके, ये फॉर्मूला इसलिए लगेगा क्योंकि ये मेरा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का केस है। देन आपको सिंपली जस्ट वैल्यू पुट करनी है। एक्सपोनेंशियल के केस में भी क्या होता है, ई 0.18। इस केस को भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर एक्सपोनेंशियल का टेबल यूज़ कर सकते हो और लॉग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल का टेबल ना यूज़ करके मैंने सिंपली लॉग से इसको फाइंड आउट किया है। तो लॉग से फाइंड आउट करने के लिए मैंने दोनों साइड पे लॉग लगा दिया है। उसके बाद सिंपली ये हो गया लॉग, क्योंकि ये होता है लॉग ए बी का फॉर्मूला, दैट इज़ लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे ए मेरा इस केस में 2000 था एंड बी एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू थी यहाँ पे, उस केस में लॉग 2000 की वैल्यू मेरी आ गई है ये, एंड 0.18 लॉग ई की वैल्यू होती है 0.4343। सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। जब आपका लॉग एस की वैल्यू आ जाएगी उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी लॉग था, मुझे तो क्वेश्चन में जस्ट अमाउंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो लॉग तो उसके साथ लगा नहीं सकते हैं। तो लॉग अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें सिंपली टेबल को यूज़ करना है। लॉग के नेक्स्ट टेबल होता है हमारा एंटी लॉग टेबल। लॉग के टेबल के साथ मैं एंटी लॉग टेबल का भी आपको कंसेप्ट समझा दूंगी इन द अदर वीडियो। सो यहाँ पर एंटी लॉग का टेबल निकालने के लिए हमें सिंपली वैल्यूज़ देखनी है और वैल्यूज़ के बाद जो मेरा आंसर आएगा दैट इज़ 2394 अप्रॉक्स। सो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ चुका है 2394। ओके, अब सपोज करिए कि अगर आपको क्वेश्चन में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं किया होता है, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जस्ट क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपाउंड अमाउंट का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, उस केस में हमारे 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है हमारा सिंपल जो कंपाउंडिंग होती है, नेक्स्ट केस होता है हमारा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, और हमारा थर्ड केस होता है दैट इज़ कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। तो तीनों केसेस में हमारे
डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों क्वेश्चन मैं आपको तीनों केसेस यहाँ पर करवा रही हूँ, आप वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। नाउ अब इस केस के अंदर आपको जैसे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन 13 में, तो यहाँ पर क्वेश्चन 13 जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें मुझे फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। आप याद करिए, अभी मैंने आपको 9th क्वेश्चन करवाया था, याद करिए मैंने आपको 9th क्वेश्चन करवाया था, बट वो केस था आपका कंपाउंडेड मंथली का। इस केस में भी मुझे प्रिंसिपल को डबल करना था अमाउंट निकालने के लिए। ये भी सेम केस है, इसमें भी मुझे प्रिंसिपल को डबल करना है अमाउंट निकालने के लिए, बट ये केस है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का। तो मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके लिए एज अ डिफरेंस लेकर आई हूँ मैं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट में। अब इस केस में यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, मुझे प्रिंसिपल को मैंने एक्स लेट कर लिया लाइक, एंड अमाउंट यहाँ पे 2x हो गया है, और आर मेरा गिवन है 0.06। सिंपली जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, जितनी वैल्यू पुट हो सकती है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो गया जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ है। यहाँ पर आ गया 2 = e⁻⁴ 0.60। दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे, लॉग की सिंपली वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद सिंपली जस्ट आपको सॉल्व करना है, और t जो है हमारे यहाँ पे आ गया 11.5 ईयर्स। दैट्स इट। तो ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ तक, ये था कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली की जो क्वेश्चंस थे। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स का क्या मतलब है? लाइक आपको क्वेश्चन में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि सपोज करो मैंने आज बैंक में मैंने आज इन्वेस्ट किए हैं 2000, ओके, फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 8%, देन नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 4%, देन नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 5%। तो दिस इज द केस ऑफ कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। इस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है, बट स्टूडेंट्स को अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो आज के लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वो है हमारा 18th क्वेश्चन, दैट इज मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स, ध्यान से सुनिए, मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स ₹20,000 इन द बैंक फॉर 4 ईयर्स। ओके, तो हमें ये पता चल गया है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 इन द बैंक फॉर 4 ईयर्स। अगर बैंक ने ऑफर किया है इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ध्यान रखिए फर्स्ट ईयर में कंपाउंडेड मंथली है, 14% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, एंड 16% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बैलेंस कितना होगा आफ्टर 4 ईयर्स। ऑल्सो फाइंड एवरेज रेट पर एनम अर्न। ये बात की बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो सेकंड पार्ट है। पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये केस है हमारा कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। प्रिंसिपल इज गिवन एज 20,000, टोटल टाइम इज गिवन एज 4 ईयर्स। नाउ अमाउंट का जब मुझे फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल लगेगा जो हमने यूज़ किया था, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + i⁻n। यहाँ पे क्योंकि एक ही अमाउंट एक ही प्रिंसिपल है मेरे पास, तो सबसे पहले नॉर्मली उसी को लिखेंगे। फर्स्ट मेरा केस था जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा था दैट द बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। क्योंकि ये मंथली है तो इस केस में मुझे इसको मंथ वाइज से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट 1 × 2 अगर 12 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। सिंपली मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? सेकेंड पार्ट में ये सेकेंड जो केस है हमारे सेकेंड ईयर का, इसमें ये कह रहा है 14% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 14% आ गया 0.14 कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर भी आ गया 4 क्योंकि सेकेंड ईयर का केस है ये। ओके, देन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के केस में दोनों में उन्होंने साथ में यही कहा है दैट 16% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो 16% क्योंकि सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पर भी 2 आएगा सिंपल, इसमें भी सिंपल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी 2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये नहीं होनी चाहिए कि ये सेकेंड ईयर था तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि वो 2 ईयर्स का नहीं है, वो सिर्फ सेकेंड ईयर का है। सेकेंड ईयर अपने आप में बस एक ही ईयर है। सेम थिंग विद द थर्ड एंड फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर बस एक ही ईयर है, 3 ईयर्स नहीं है जो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, नाउ सिंपल जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले
सिंपल सॉल्व करके आपका इतना पोर्शन आ गया। इसके बाद आपको यूज़ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट की जो टेबल है टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो मैंने आपको टेबल 1 बताई है उसमें से वैल्यू निकाल कर आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। देन लास्ट मुझे जो फाइंड आउट करना है वो करना था एवरेज रेट पर एनम अर्न। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मुझे लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि मुझे इसमें फाइंड आउट करना है कि इंटरेस्ट क्या होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है कि एवरेज रेट पर एनम क्या है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की है जस्ट, यहाँ पर 4 आ गया क्योंकि 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग है ये। डिवाइड करेंगे इसे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ गया है। अब सिंपल आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से तो आप वैल्यू अब देख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आई ही नहीं है ना, तो अब टेबल को तो यूज़ करेंगे नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे अगर कभी 2 पावर होती है और दूसरी साइड पे स्क्वायर होता है तो हम उसका इफेक्ट फिनिश कर देते हैं। तो इस केस में इफेक्ट फिनिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 4 है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे इसका इफेक्ट शो करने के लिए हम यहाँ पर जो भी इसको डिवाइड करके आएगा, जो भी इसका नंबर आएगा डिवाइड करके, आप उसे 2 बार स्क्वायर रूट कर देंगे। 2 बार स्क्वायर रूट करने का मतलब यही है कि आप इफेक्ट शो कर रहे हैं 4 पावर का। सिंपल मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 0.1516। अब क्योंकि ये मुझे परसेंट में निकालना है, इंटरेस्ट है, दैट्स वाई आंसर विल बी 15.16। इसे 1 माइनस करना मत भूलिएगा। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन इज सिंपली फाइंड द अमाउंट ऑफ 2000। 15th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट ऑफ 2000 आफ्टर 10 years at 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 4 years एंड एट 6% कन्वर्टेड मंथली देयर आफ्टर। क्वेश्चन आपको बिल्कुल 18th क्वेश्चन जैसा ही लग रहा होगा जी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बट अगर जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ आया तो उसको ये वाला क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि इसमें मेरे पास ज़्यादा कन्वर्जन पीरियड्स नहीं है। सो कंपाउंड अमाउंट एंड चेंजिंग रेट्स का क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें मुझे प्रिंसिपल गिवन है 2000, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 10, जिसमें उन्होंने फर्स्ट केस में बोला है दैट 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट 4 years। तो पहले अब 4 साल है, ध्यान रखिए, अब पहले 4 साल के लिए वो क्वार्टरली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में मेरे पास गिवन था 0.08। इसे मैंने डिवाइड करा है 4 से, और यहाँ पर 4 into 4 करेंगे क्योंकि अब मुझे साथ में ही 4 years का निकालना है। जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन के केस में आपके पास ऐसा केस नहीं था, उसमें हर ईयर के लिए उन्होंने अलग अलग गिवन दिया हुआ था। सो 4 years का हमारे पास इतना आ गया है, एंड नेक्स्ट 6% जो है 6 years के लिए जो रेस्ट है हमारा वो है 6% कन्वर्टेड मंथली। तो यहाँ पर मैंने इसे 12 से डिवाइड किया है क्योंकि मंथली का केस है, और यहाँ पर क्योंकि 6 years है तो 6 into 12 कर देंगे, दैट इज 72। सिंपली पहले इसको आप डिवाइड करिए, इसे डिवाइड करेंगे तभी आपका क्वेश्चन सिंपली सॉल्व होगा। इसे ही मत करने लग जाना सॉल्व, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी अदरवाइज। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करके इसको डिवाइड करिए, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार हम दोबारा टेबल को देखते हैं, जो मैंने अभी फ्यूचर वैल्यू की टेबल आपको बताई थी। तो फ्यूचर वैल्यू की टेबल मेरे पास आ गई है। सो दिस इज द टेबल अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरी फ्यूचर वैल्यू की टेबल है। अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हाँ, मुझे निकालना है 0.02। तो 0.02 मेरे पास यहाँ पर मिलेगा 0.02। ओके, 0.02 आ गया मेरा। 0.02 में मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के केस में 16। 0.02 मुझे 16 में देखना है। तो 0.02 आप 16 में देखेंगे तो 16 में देखते हुए आपका 16 में वैल्यू आ रही है 1.37278571। 1.3727। अगर आपने ज़्यादा वैल्यू लेनी है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके आगे फ़ोन नंबर, मैंने वैल्यू 4 तक ली है, एटलीस्ट 4 तक तो लीजिए, इससे कम मत लीजिएगा। बट पूरी वैल्यू लेनी है तो इट्स अप टू यू, आप पूरी भी ले सकते हो। नेक्स्ट है मेरा 0.005। अब ये 005 है, ध्यान रखिए, इसे आप 0.05 में मत चेक करना, गलत हो जाएगा आपका। तो दिस इज़ 0.005। तो 005 चेक करने के लिए देखिए
005 में मुझे चेक करना है 72, तो यहाँ पर मुझे चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करना है 0.005, 005 में मुझे चेक करना है 72, तो 72 मेरा यहाँ पर आ रहा है। 72 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है 1.43204428, सी 1.4320। आप पूरी वैल्यू ले सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग सिंपली मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ गया। आज हमने कुछ न्यू टॉपिक करा है, इसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। जो भी डाउट्स होंगे मैं आपसे लाइव क्लास में ज़रूर लूँगी उन डाउट्स को। आज के वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। न्यू टॉपिक था, ज़रूरत लगे तो वीडियो को चाहे आप 1 से 2 बार ही ज़रूर देखिए फिर से, बट कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप उसे भी देखिए जाके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, डू प्रैक्टिस, बाय।